آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کے ایک بہت ہی شاندار، وسیع اور سحر انگیز موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ اور وہ موضوع ہے مغلیہ سلطنت۔ عام طور پر جب بھی اس سلطنت کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں کیا ابھرتا ہے؟ ہیروں سے جڑے تاج، شاہی درباروں کی سازشیں، محلات اور بڑی بڑی خون ریز جنگیں، ہے نا؟ ہاں، زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن آج کے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے موجود ان تفصیلی نوٹس اور دستاویزی شواہد کی روشنی میں اس حقیقت کو اجاگر کیا جائے کہ یہ سلطنت محض چند بادشاہوں کی کہانیوں یا جنگوں تک محدود نہیں تھی۔ دراصل یہ ایک ایسا سنہری دور تھا جس نے بر صغیر کو ایک زبردست عالمی، معاشی اور ثقافتی طاقت میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ بالکل، اس دور میں ہونے والی معاشی اور سماجی تبدیلیاں اس قدر گہری اور منظم تھیں کہ ان کے اثرات آج صدیوں بعد بھی پوری طرح محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس عظیم الشان سلطنت کا آغاز آخر کیسے ہوا اور کیسے ایک چھوٹی سی فوج نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ جی، بات شروع ہوتی ہے 1526 سے، جب پانی پت کی پہلی تاریخی جنگ لڑی گئی۔ ہمارے نوٹس بتاتے ہیں کہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر، جن کا تعلق وسطی ایشیا سے تھا، ہندوستان آئے۔ ان کے سامنے دلی کے سلطان ابراہیم لودھی کی ایک انتہائی وشال فوج تھی۔ بابر کی فوج تعداد میں بہت ہی کم تھی، لیکن حیران کن طور پر انہوں نے اس جنگ میں فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ آخر ایسا کیا تھا ان کے پاس جو لودھی کی اتنی بڑی فوج کے پاس نہیں تھا؟ جواب ہے بارود، توپیں اور جنگی حکمت عملی کا ایک بالکل نیا انداز۔ صحیح۔ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس عظیم سلطنت کی ابتدا ایک خانہ بدوش اور جنگجو ریاست کے طور پر ہوئی تھی، لیکن پھر یہ کتنی تیزی سے اور کتنی حیرت انگیز حد تک ایک انتہائی منظم، ترقی یافتہ اور بیوروکریٹک ریاست میں ڈھل گئی۔ بالکل، یہ تبدیلی بہت غیر معمولی تھی۔ اگر ہم پانی پت کی اس پہلی جنگ میں بابر کی حکمت عملی کا بغور جائزہ لیں تو دستاویزات واضح کرتی ہیں کہ بابر نے محض قسمت کے سہارے جنگ نہیں جیتی تھی۔ انہوں نے اس عثمانی ماہر استاد علی قلی کی خدمات حاصل کی تھی۔ اچھا جی، تاکہ وہ ایک خاص جنگی ترتیب جسے آٹومن فارمیشن یا عثمانی طرز جنگ کہا جاتا ہے کا استعمال کر سکے۔ تو اس ترتیب میں ہوتا کیا تھا؟ بابر نے اپنی پیادہ فوج اور بارودی ہتھیاروں کو مرکز میں بیل گاڑیوں کے پیچھے بالکل محفوظ کر دیا تھا، اور اطراف میں انتہائی تیز رفتار گھڑ سوار تیر انداز تعینات کر دیے تھے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، ابراہیم لودھی کی فوج جو روایتی انداز میں ہاتھیوں اور تلواروں کے ساتھ حملہ ور ہو رہی تھی، اس کا سامنا اچانک توپوں کی گرج اور بارود کے دھوئیں سے ہوتا ہے۔ بالکل، ان ہاتھیوں نے تو اس سے پہلے کبھی توپ کی آواز سنی نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ بدک گئے ہوں گے اور اپنی ہی فوج کو کچلنا شروع کر دیا ہوگا۔ یہ محض ایک جسمانی فتح نہیں تھی، یہ ایک زبردست نفسیاتی دھچکا تھا جس نے ہندوستان میں جنگ کے پرانے تمام اصولوں کو ہمیشہ کے لیے متروک کر دیا۔ صحیح کہا۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بابر اور ان کے جانشینوں نے صرف تلوار کے زور پر حکومت نہیں کی، انہوں نے مفتوحہ علاقوں کی مقامی ثقافت کو کچلنے کے بجائے ایک ایسا جدید انتظامی اور حکومتی ڈھانچہ متعارف کروایا جس نے مختلف طبقوں کو ایک نظام کے تحت لا کھڑا کیا۔ بالکل درست تجزیہ ہے آپ کا۔ دیکھیں، کوئی بھی سلطنت صرف بارود کے زور پر صدیوں تک قائم نہیں رہ سکتی۔ جی ہاں، اور اسی لیے اس انتظامی اور معاشی ڈھانچے کی جو سب سے مضبوط بنیاد رکھی گئی وہ تیسرے شہنشاہ اکبر کے دور میں سامنے آئی۔ اکبر کا دور دراصل وہ موڑ ہے جہاں سے یہ سلطنت ایک عالمی معاشی طاقت بننا شروع ہوتی ہے، جسے جدید ماہرین معاشیات پروٹو انڈسٹریلائزیشن کا نام دیتے ہیں۔ بالکل، ابتدائی صنعتی دور۔ نوٹس میں ایک بہت ہی اہم اصطلاح کا ذکر بار بار آتا ہے، اور وہ ہے ضبط کا نظام۔ ضبط؟ جی، ضبط۔ یہ ایک نیا ٹیکس نظام تھا جس نے پورے ہندوستان کی معیشت کا رخ بدل دیا۔ ہاں، اس ضبط کے نظام پر تھوڑی مزید بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بظاہر ایک عام سی انتظامی تبدیلی لگتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ بہت زیادہ گہرے۔ اس سے پہلے خراج کا نظام چلتا تھا،
जहां किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा, मसलन गंदम या चावल की बोरियां, सीधा रियासत को दे दिया करते थे। लेकिन अकबर ने इस पुराने निजाम को मनसूख कर दिया। और इसकी जगह क्या आया? उन्होंने फसलों की पैदावार पर नकद टैक्स लाजमी करार दे दिया। यानी अब किसानों को अपना टैक्स खालिस चांदी के सिक्कों में अदा करना होता था, जिसे रुपया कहा जाता था। और यही वो मास्टर स्ट्रोक था? जाहिर है, किसान के पास चांदी के सिक्के तो खेत में नहीं उगते। तो इस एक शर्त ने क्या किया? उसने गांव के आम किसान को मजबूर कर दिया कि वो अपनी पैदावार को बैलगाड़ियों पर लादकर कस्बों और शहरों की बड़ी मंडियों तक लेकर जाए। बिल्कुल, किसान को चांदी चाहिए थी और चांदी हासिल करने के लिए उसे ताजरों से राब्ता करना पड़ा। सही। इस तरह गांव का एक आम किसान और छोटा दस्तकार एक बहुत बड़े मुल्की और फिर बैनुल-अक़वामी तिजारती नेटवर्क का लाजमी हिस्सा बन गया। इस नकद अदायगी की शर्त ने पूरी सल्तनत में तिजारत को एक जबरदस्त धचका देकर मुतहर्रिक कर दिया। मतलब पूरी मुआशियत आपस में जुड़ गई। जी, ये माशी पॉलिसियां वाकई इनकलाबी नौयत की थी। इन पॉलिसियों की बदौलत माशियत इस हद तक परवान चढ़ी कि दस्तावेजी शवाहिद के मुताबिक 1750 तक हिंदुस्तान पूरी दुनिया की कुल सन्नती पैदावार का 24.5% यानी तकरीबन 1/4 हिस्सा पैदा कर रहा था। 1/4 हिस्सा ये कोई मामूली बात नहीं है। यानी दुनिया की हर चौथी चीज जो इस वक्त बन रही थी वो मुगल हिंदुस्तान से आ रही थी। बिल्कुल। ये सोचकर ही हैरत होती है कि आज हम जिन माशी सुपर पावर्स को देखते हैं, उस वक्त हिंदुस्तान का रुतबा उनसे कहीं बढ़कर था। और उस वक्त का ये हिंदुस्तान माशी और सनती लिहाज से 18वीं सदी के उस मगरबी यूरोप के बिल्कुल मुसावी खड़ा था, जो खुद एक बड़े सनती इनकलाब के दहाने पर था। सही। मुगलों का मुआशी निज़ाम बहुत हद तक आज़ाद मईशत के उसूलों पर चलता था। रियासत तिजारत में गैर ज़रूरी मुदाखलत से गुरेज करती थी और ताजरों को आज़ादाना काम करने की सहूलत देती थी। उस दौर में कपड़े की सनत सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श सनत थी। पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर यूरोप का फैशन मुगल हिंदुस्तान के बने हुए रेशम और इंतहाई नफीस सूती कपड़ों पर मुकम्मल तौर पर मुनस्सिर हो चुका था। यहाँ ये बात इंतहाई दिलचस्प हो जाती है जब हम इस दौर के बंगाल सूबे की मिसाल पर गौर करते हैं। ओह, बंगाल, बिल्कुल। हमारे नोट्स इस बात पर खास जोर देते हैं कि बंगाल का सूबा पूरे मुगल दौर में सबसे खुशहाल, अमीर तरीन और सनती लिहाज से सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता खित्ता था। वहाँ की सनतों का स्केल या पैमाना आज के दौर के हिसाब से भी हैरान कुन है। यकीनन। जरा वहाँ के बहरी जहाज़साजी के शोबे को ही देख लें। बंगाल की जहाज़साजी की सनत इस कदर जबरदस्त और जदीद थी कि ये सालाना 2,23,250 टन के जहाज बनाती थी। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। वाकई। और इस नंबर की अहमियत को समझने के लिए हमें इसका मुवाजना उस वक्त की दूसरी उभरती हुई ताकतों से करना होगा। जी। अगर हम इसका मुवाजना उस वक्त के शुमाली अमेरिका से करें, जो बाद में जाकर रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका बना, तो 1769 से 1771 के दरमियान शुमाली अमेरिका की कुल 19 कॉलोनियां मिलकर भी सिर्फ 23,061 टन की जहाजसाजी कर पाती थीं। जरा फर्क देखें। जी, 23,000 टन मुकाबला 2,23,000 टन। बंगाल अकेला पूरे शुमाली अमेरिका से 10 गुना ज्यादा बड़े और ज्यादा जहाज बना रहा था। ये आदादो-शुमार मुगल हिंदुस्तान की जबरदस्त सनती, टेक्निकी और पैदावारी सलाहियत का एक ऐसा मुंह बोलता सबूत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। और जाहिर है, जब इतनी बड़ी सतह पर सनत काम कर रही हो, जहाज बन रहे हों, कपड़ा बुना जा रहा हो, मंडियां चल रही हों, तो इन सब चीजों को चलाने के लिए इंसानों की भी जरूरत होती है। लोगों को रोजगार मिलता है और वो इन सनती मराकज़ की तरफ हिजरत करते हैं। अगर हम इसे वसीतर तनाजुर में देखें तो इस बेपनाह मुआशी और सनती तरक्की का सीधा और फौरी असर आबादी के फैलाव और शहरों की तामीर पर पड़ा। 1500 से लेकर 1700 तक के इन 200 सालों में आबादी में गैर मामूली और तारीखी इजाफा देखने में आया। हिंदुस्तान की आबादी 15 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ 84 लाख तक पहुंच गई। जबरदस्त। लेकिन कुल आबादी के इजाफे से भी ज्यादा जो अहम बात है वो है शहरकारी यानी अर्बनाइजेशन की सतह। मुगल सल्तनत की तकरीबन 15% आबादी शहरों में रहाइश पजीर हो चुकी थी। 15% आज के दौर में शायद बहुत बड़ी बात न लगे, लेकिन उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा तनासुब था। बिल्कुल। उस दौर में ये तनासुब हमअसर यूरोप
और यहाँ तक कि 19वीं सदी के ब्रितानी हिंदुस्तान की शहरी आबादी के तनासुब से भी कहीं ज्यादा था। क्या बात है। लोग देहातों से निकलकर इन शहरों में आ रहे थे जो तिजारत के हब बन चुके थे। आगरा, लाहौर और दिल्ली जैसे शहरों की आबादी कई कई लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। और जिस बंगाल का हमने अभी जिक्र किया है जी, उसके दारुल हुकूमत ढाका की आबादी तो 10 लाख को भी उबूर कर चुकी थी। 10 लाख। और ये शहर कोई आम सी बस्तियां या सिर्फ रिहाइशगाहें नहीं थे। ये तिजारत, दस्तकारी, बैनुल अक़वामी फिनांस और तहजीब के अजीम और धड़कते हुए मराकज़ थे। वहाँ पूरी दुनिया से ताजर आ रहे थे। और इतने बड़े शहरों और इतनी बड़ी आबादी का पेट पालने के लिए जाहिर है ज़राअत का इंतहाई मजबूत और जदीद होना बहुत ज़रूरी था। अगर खेतों से अनाज नहीं आएगा तो शहर कैसे चलेंगे? बिल्कुल सही सवाल है। ज़राअत के मैदान में भी हमें कमाल की जिद्दत देखने को मिलती है। वैसे तो इन ज़राई इस्लाहात का बाकायदा आगाज़ शेरशाह सूरी के मुख्तसर लेकिन शानदार दौर में हुआ था, लेकिन मुग़लों ने ख़ास तौर पर अकबर के दौर में इन इस्लाहात को न सिर्फ अपनाया बल्कि उन्हें उरूज तक पहुंचा दिया। ज़राअत में उन्होंने जो आबपाशी के वसी निज़ाम और नहरें बनाई, इससे फसलों की पैदावार में बेपनाह इजाफा हुआ। जी, लेकिन एक और बहुत बड़ी तब्दीली तब आई जब आलमी तिजारत के नतीजे में अमरीकी बरे-आज़मों से बिल्कुल नई फसलें हिंदुस्तान लाई गईं। जैसे मकई? जी, मकई और तंबाकू जैसी फसलें जो उससे पहले हिंदुस्तान की ज़मीन पर कभी नहीं उगाई थी, उन्हें यहाँ मुतारिफ करवाया गया और बड़े पैमाने पर उनकी बाकायदा काश्त शुरू की गई। इससे न सिर्फ खुराक की अक़साम में इजाफा हुआ बल्कि रियासत की आमदनी में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ज़राअत में भी मशीनें इस्तेमाल हो रही थी। जी बिल्कुल। सबसे हैरान कुन बात जो इन नोट्स में मौजूद है वो ये है कि बीज बोने की मशीन, जिसे सीड ड्रिल कहा जाता है, उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के किसानों में बहुत आम था। ये वाकई हैरत अंगेज है। ये वो वक्त था जब यूरोप के किसानों में इस तरह की मशीन का तस्वुर भी आम नहीं हुआ था और वो हाथों से बीज छिड़कते थे। सीड ड्रिल से बीज एक कितार में और मुनासिब गहराई में बोए जाते थे, जिससे पैदावार बहुत बढ़ जाती थी। और इसके अलावा गन्ने से रस निकालने के लिए गेयर वाली मशीनों का इस्तेमाल भी उसी दौर की एक जबरदस्त इख्तिरा है, जिसने चीनी की पैदावार को सनती शक्ल दे दी। बिल्कुल। तो ज़रई और सनती तरक्की तो अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन किसी भी अजीम सल्तनत की पहचान सिर्फ उसकी मंडियों से नहीं होती। जी, उसके कल्चर, फने तामीर और उलूम फ़नून से भी होती है। अगर हम सकाफती पहलू पर नजर डालें तो मुगलों का फने तामीर आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। उसकी सबसे नुमाया और बड़ी मिसाल शाहजहां के दौर में बनने वाला ताजमहल है। ये इमारत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, हरगिज नहीं, बल्कि ये रियाजी, ज्योमेट्री और फनूने लतीफ़ा का एक ऐसा शाहकार है जिसे आज यूनेस्को ने आलमी वर्सा करार दिया है और दुनिया के खूबसूरत तरीन अजायबात में इसका शुमार होता है। लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और लाहौर का शालीमार बाग भी तो इसी सुनहरी दौर की यादगारें हैं। बिल्कुल। और सिर्फ बड़ी इमारतें ही नहीं, अगर हम उनके लाइफस्टाइल और तर्ज जिंदगी की तरफ देखें तो वो भी हैरान कुन हद तक जदीद था। जैसे वो बर्फखाने? जी, तारीखदानों के हवालों से दिल्ली में मौजूद बर्फ खानों यानी आइस हाउसेस का जो जिक्र मिलता है वो बहुत दिलचस्प है। जरा सोचें, उस दौर में जब बिजली नहीं थी, रेफ्रिजरेटर नहीं थे, तब भी वो इतनी शदीद गर्मी में दिल्ली के अंदर बर्फ का इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो कमाल की बात है। पहाड़ों से बर्फ लाई जाती थी और उसे खास किस्म की जेरे जमीन इमारतों में महफूज किया जाता था ताकि बादशाह और उमरा गर्मियों में भी ठंडे मशरूबात का लुत्फ उठा सकें। ये जाहिर करता है कि वो जिंदगी की आसाइशों और इंजीनियरिंग के हवाले से किस कदर आगे की सोच रखते थे। और देखें, सकाफत सिर्फ इमारतों तक तो महदूद नहीं होती, मुख्तलिफ जुबानों का इर्तिका भी इसी दौर का एक बहुत खासा है। जी, जुबानों का मिलाप। फारसी, जो कि दरबार की सरकारी जुबान थी, जब उसका मकामी बोलियों के साथ मिलाप हुआ तो एक नया लिसानी इम्तिजाज पैदा हुआ। जुबान के हवाले से मशहूर शायर मीर तकी मीर का वो हवाला हमारी दस्तावेजात में बहुत अहमियत का हामिल है, जहां वो सराहत से कहते हैं कि उर्दू या हिंदुस्तानी जुबान दरअसल बादशाह की सरपरस्ती, मर्जी और इख्तियार के तहत परवान चढ़ी। और ये वो जुबान बनी जिसने पूरे खित्ते को एक दूसरे से जोड़ दिया और आज भी बरे सगीर के करोड़ों लोगों के राब्ते की सबसे बड़ी जुबान है। बिल्कुल। और सिर्फ फनून लतीफ़ा या जुबान के मैदान में ही काम नहीं हुआ,
साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी ऐसी इजादात हुई जिन्हें पढ़कर वाकई हैरत होती है। साइंस के मैदान में? जी, मिसाल के तौर पर दस्तावेजी सबूतों में कश्मीर में बनने वाले एक ऐसे बगैर जोड़ के खलाई ग्लोब यानी सीमलेस सेलेस्टियल ग्लोब का तज़किरा मिलता है जिसे सन 1589 और 90 के दौरान अली कश्मीरी इब्न लुकमान नामी एक कारीगर ने बनाया था। इस पर सितारों और सैयारों के नक्शे बने हुए थे। जी हाँ। इस ग्लोब की खास बात यह है कि इसे बगैर किसी जोड़ के एक ही धात से अंदर से खोखला बनाया गया था। जदीद दौर के माहिरीन धातकारी भी एक अरसे तक ये मानते थे कि बगैर किसी कट या जोड़ के अंदर से खोखला धाती ग्लोब बनाना तकनीकी लिहाज से कतई नामुमकिन है। बिल्कुल, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कैसे बनाया गया। लेकिन मुगल दौर के कारीगरों ने अपनी महारत से ये कर दिखाया और आज भी वो ग्लोब दुनिया के अजायब घरों में मौजूद हैं। और सिर्फ ग्लोब ही नहीं, अस्करी साइंस में भी वो बहुत आगे थे। जंगी मैदान में अकबर की जानिब से धाती रॉकेटों का इस्तेमाल भी एक जबरदस्त इजाद थी। जी, उन रॉकेटों को बान कहा जाता था। दुश्मन की फौज के जो भारी भरकम जंगी हाथी होते थे उनके खिलाफ इन धाती रॉकेटों को फायर किया जाता था। जब ये रॉकेट शोर मचाते और आग उगलते हुए हाथियों के करीब गिरते तो हाथी खौफजदा होकर भाग खड़े होते। ये उनकी साइंसी और अस्करी महारत के बेहतरीन इम्तिजाज की एक और झलक है। बिल्कुल। लेकिन देखें, जहां इतनी जबरदस्त तरक्कियां और कामयाबियां हुईं, वहीं हमें तारीख को बिल्कुल मौजूई अंदाज में भी देखना चाहिए। हर सल्तनत की तरह इस सल्तनत के भी कुछ मुतनाज़ा पहलू रहे हैं। जी, खास तौर पर जब हम छठे मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर का जिक्र करते हैं। सही, तो तारीखदान उनके दौर का मुख्तलिफ जावियों से तज्जिया करते हैं और हमें दोनों पहलुओं को पूरी दयानतदारी से देखना होगा। हमारे नोट्स बताते हैं कि एक तरफ तो ये हकीकत पेश की जाती है कि उनकी मजहबी पॉलिसियां उनके पेशरुओं की निस्बत काफी सख्त थीं। जी, उन पॉलिसियों में खासतौर पर गैर मुस्लिमों पर जिजिया टैक्स की बहाली और फतावा आलमगीरी की शक्ल में इस्लामी कवानीन के सख्त निफाज का जिक्र आता है। बिल्कुल, और बाज़ मौरखीन का मानना है कि इन सख्त फैसलों की वजह से माशरे के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान फासले बढ़े, बेचैनी फैली और सल्तनत का वो इस्तेहकाम जो अकबर और शाहजहां ने कायम किया था उसे नुकसान पहुंचा। सही। लेकिन इसी के साथ साथ दस्तावेजात हमें रुक कर सोचने पर भी मजबूर करती हैं, क्योंकि दूसरी तरफ वही औरंगजेब हैं जिन्होंने अपने तमाम पेशरुओं के मुकाबले में सबसे ज्यादा हिंदुओं को शाही ब्यूरोक्रेसी, फौज और आला सरकारी ओहदों पर फाइज किया। ये वाकई एक बहुत मुतजाद और हैरान कुन पहलू है। एक तरफ मजहबी सख्ती और दूसरी तरफ अपनी ही इंतजामिया में सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम अफसरान। और सिर्फ यही नहीं, उनके दौर के ऐसे सरकारी फरामीन भी मौजूद हैं जिनके तहत बहुत सी गैर मुस्लिम इबादतगाहों और मंदिरों की देखभाल और तामीर के लिए बाकायदा माली फंड्स फराहम किए गए। और उन्होंने हिंदुओं और शिया मुसलमानों के खिलाफ होने वाले तासुब की भी खुली मुखालफत की। ये तमाम हकायक इस बात को जाहिर करते हैं कि वो दौर और उस दौर की पॉलिसियां महज स्याह और सफेद नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। उनमें बहुत सी पेचीदगियां थीं जिन्हें आज का इंसान अक्सर नजरअंदाज कर देता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक इतनी अजीम और शान सल्तनत जिसकी मईशत दुनिया के 1/4 हिस्से पर मुहित थी, जिसके जहाज समंदरों पर राज करते थे, जिसका फन तामीर आज भी बेमिसाल है और जिसकी साइंसी और अस्करी ताकत का लोहा उस वक्त की पूरी दुनिया मानती थी, वो सल्तनत आखिर जवाल का शिकार कैसे हो गई? ये बहुत अहम सवाल है। आमतौर पर तो यही समझा जाता है कि शायद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद ने इस सल्तनत को खत्म कर दिया, लेकिन दस्तावेजी शवाहिद तो ये बताते हैं कि जब यूरोपियन कंपनियां हिंदुस्तान आना शुरू हुईं तो वो जवाल का सबब हरगिज नहीं थीं, बल्कि वो तो मुगल बादशाहों के दरबार में खड़े होकर तिजारत की इजाजत की भीख मांग रही थीं। बिल्कुल, जवाल की असल वजूहात बाहर से नहीं आई, बल्कि वो बिल्कुल अंदरूनी थी। 1707 में औरंगजेब की वफात के बाद से ही सल्तनत के बिखरने का अमल बहुत तेजी से शुरू हो गया था। जी, तख्त के हुसूल के लिए होने वाली जंगें। जी हाँ, इन मुसलसल, तवील और खूनी जंगों ने मरकजी हुकूमत की जड़ें खोखली कर दी थी। जानशीन इस कदर नाअहल थे कि एक ही साल यानी 1719 में तख्त दिल्ली पर यके बाद दीगरे 4 बादशाह बिठाए और हटाए गए। 4 बादशाह एक ही साल में? जी, ये सियासी अदम इस्तेकाम की इंतहा थी। और जाहिर है जब दारुल हुकूमत में इतनी अफरा तफरी होगी तो मईशत तो तबाह होगी ही, और फिर जंगों का खर्चा भी तो होता है। बिल्कुल,
औरंगजेब के दौर में दक्कन के महास पर मुसलसल 27 साल तक जंगें लड़ी गईं। इन तवील अस्करी मुहिमात ने शाही खजाने को नचोड़ कर रख दिया था। खजाना खाली हो गया। जी, जब खजाने में पैसा ही नहीं रहा तो उमरा, ब्यूरोक्रेट्स और फौजियों को तनख्वाहों की अदायगियां रुक गईं, और जब पैसा रुकता है तो वफादारियां तब्दील होने लगती हैं। जाहिर सी बात है। यही वजह थी कि सूबाई गवर्नरों जैसे कि बंगाल, हैदराबाद और औध के नवाबों ने दिल्ली की कमजोरी का फायदा उठाया और अपनी खुद मुख्तार रियासतें कायम कर लीं। सल्तनत अंदर से बिखर चुकी थी। फिर नादिर शाह का दिल्ली पर हमला और उसकी बेपनाह लूट मार ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। बिल्कुल। 1857 की बगावत और आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर की बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों रंगून जलावतनी तो दरअसल इस जवाल की महज आखिरी और रस्मी किस्त थी। असल जवाल तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। सल्तनत तो दहाइयों पहले ही दम तोड़ चुकी थी। अगर हम आज की इस पूरी तफसीली गुफ्तगू को एक जगह समेटें तो हमारे सामने रखे गए नोट से ये बात पूरी तरह और वाज़ेह तौर पर अयां होती है कि मुगल सल्तनत महज एक जंगजू और अस्करी ताकत नहीं थी। कतई नहीं। उन्होंने एक मुश्तरका करेंसी, सड़कों और शाहराहों के वसी नेटवर्क और एक मजबूत और मुनज़्ज़म ब्यूरोक्रेसी के जरिए एक इंतहाई खुशहाल और सकाफती लिहाज से मालामाल रियासत कायम की थी। इस सल्तनत का असर बर्रे सगीर के चप्पे चप्पे में आज भी जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। चाहे वो रोजमर्रा के मुगलई खाने हों, लिबास की तर्ज हो, हमारी राब्ते की ज़बानें हों या फ़न तामीर की शानदार इमारतें हों, मुग़लों ने जो बीज बोए उनकी फसल आज भी किसी न किसी सूरत में इस खित्ते की रोज़मर्रा सकाफत का अटूट हिस्सा है। इससे एक अहम सवाल जन्म लेता है, और ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद तारीख के किताबों में इतनी गहरी बात नहीं की जाती, हालांकि नोट्स में उसका इशारा मौजूद है। हमने उनकी बेपनाह दौलत का जिक्र किया। जी, दस्तावेजात बताती हैं कि मुगल दौर में फीकस खुराक की आमदनी और ज़रे पैदावार 20वीं सदी के अवाइल के बरतानी हिंदुस्तान से भी ज्यादा थी। मतलब लोगों के पास खाने पीने को काफी था। जी, यानी मजमूई तौर पर अनाज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसी निज़ाम में एक बहुत बड़ी और बुनियादी खामी भी मौजूद थी। निज़ाम की नौयत की ऐसी थी कि आला ओहदेदारों, नवाबों और अशराफिया ने बेपनाह दौलत सिर्फ अपने पास जमा कर रखी थी। एलीट क्लास के इस बेइंतहा दौलत की होश और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कीमत किसने चुकाई? आम मजदूर, किसान और दस्तकार ने, जिनकी उजरत को जानबूझकर दबा दिया गया था। इस सुनहरी दौर के बावजूद महलात तो बन रहे थे, लेकिन वसाइल की तकसीम इंतहाई हद तक गैर मुसावी थी। ये वाकई एक बहुत गहरी और सोचने वाली बात है। ये सिर्फ माजी की कहानी नहीं, बल्कि एक माशी सबक है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए यकीनन ये सोचने का मकाम है कि क्या ये मुमकिन है कि कोई भी अजीम सल्तनत जो दुनिया की कुल पैदावार का 25% यानी 1/4 हिस्सा पैदा कर रही हो, जिसके पास बेहतरीन फौज और शानदार इमारतें हों, लेकिन अगर वो अपनी सारी दौलत और वसाइल को सिर्फ चंद हाथों में मरकूज कर ले, तो क्या वो माशरा अंदर से इतना खोखला हो जाता है कि उसका जवाल महज वक्त की बात रह जाता है? बहुत खूबसूरत नुक्ता है। क्या वसाइल की ये गैर मुसावी तकसीम और आम आदमी का माशी इस्तेहसाल किसी भी सुपर पावर के जवाल का वो पोशीदा मगर सबसे हौलनाक सबब होता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है? ये सोचने की बात है। जी। आज के इस तफसीली जायजे में हमने मुगल सल्तनत के उरूज, इसके हैरानकुन माशी इनकलाब, इसके शानदार सकाफती विरसे और साथ ही साथ इसके जवाल की पेचीदा वजूहात को तारीखी दस्तावेजात की रोशनी में गहराई से समझने की कोशिश की। जी, और हमारी कोशिश रही कि तस्वीर के तमाम रुख, उसके रोशन और तारीख पहलू पूरी दयानतदारी से पेश किए जाएं। बिल्कुल। इस फिक्र अंगेज और गहरे सवाल के साथ हम आज के प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। सुनने वालों की इस भरपूर तवज्जो और वक्त का बहुत शुक्रिया। अगले तफसीली मुताले तक के लिए अलविदा।